Okay. Good evening, everybody. But I hope you are able to hear my voice clearly. Okay. So, bache, in the previous class we were discussing motion chapter. हमने इसकी division जो थी वो begin की थी. Alright. So, बच्चे उसमें हमने last जो topics cover किए थे, they were distance and displacement. Distance and displacement के दो topics हम cover कर चुके थे. So, बच्चे, today we'll be moving ahead. We'll be starting up today with speed and velocity and concept of uniform and non-uniform motion. Okay. So, बच्चे, the first topic or the first जो आज हम term पढ़ेंगे, that would be uniform motion. हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? सबसे पहले we'll be first discussing uniform motion and then non-uniform motion. ठीक है. So, बच्चे, uniform motion का क्या मतलब है? Uniform motion means when object covers equal distance in equal intervals of time. What is uniform motion? Uniform motion को हम कैसे define करते हैं? Uniform motion is when object covers equal distance in equal intervals of time. All right. अगर बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन व्हाट यू विल से? यू विल से द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन. बच्चे, कैन वी से द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड आल्सो? अगर हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? कैन वी से दैट? यस, वी कैन से इट इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. और बच्चे, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो देन आल्सो यू कैन से कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर बच्चे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो अगर उसके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट आल्सो हैज यूनिफॉर्म स्पीड and you can also say that object has uniform velocity. All right. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, इसी में हम टर्म करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब बच्चे, what do we understand by the term non-uniform motion? Non-uniform motion means when object covers unequal distances. जब ऑब्जेक्ट unequal distances कवर करता है. Okay. When object covers unequal distances, when object covers unequal distances in equal intervals of time or vice versa. Okay. When object covers unequal distances in equal intervals of time or vice versa. अगर बच्चे मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, it is showing motion which is non-uniform. मतलब यहां जो स्पीड है वो वेरिएबल है. द स्पीड इज वेरिएबल. दैट मीन्स द स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. दैट इज द रीजन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और वाइस वर्सा. इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स, दोनों केसेस में बच्चे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बच्चे, कैन वी से ऑब्जेक्ट विच इज कैन वी से दैट कार विच इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मार्केट, जहां बहुत भीड़ है, it will be traveling in with non-uniform motion? If a car is traveling through a crowded market, so can we say it will travel in non-uniform motion? Yes. अगर straight road पे जा रहा है और with constant speed पे object जा रहा है, then you will say it is in uniform motion. तो बच्चे ये दो टर्म है जो हमें ध्यान रखने हैं. अब बच्चे we'll be describing motion ahead. हम जाएंगे सबसे पहले, we'll be first doing the concept of speed. We'll be first doing the concept of speed.
अब अच्छा स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज distance covered in unit time. How can we define speed? It is rate at which distance is covered in unit time. Okay, it is rate at which distance is covered in unit time. Okay, तो बच्चे स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. Speed is equal to distance covered divided by time taken. All right. Okay. और बच्चे इसका यूनिट क्या हम यूज करेंगे? इसका स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या यूज करेंगे? SI यूनिट. SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड. पर बच्चे एक जो और बहुत कॉमन यूनिट है, द अदर कॉमन यूनिट दैट वी यूज, that is kilometer per hour. Okay, SI unit है meter per second and the other unit that we use is kilometer per hour. ये common unit है जो हम use करते हैं. All right, so speed is equal to distance divided by time. SI unit is meter per second. Other unit that we can commonly use is kilometer per hour. अब बच्चे which instrument is present in the car which helps us to measure speed? जैसे हमने डिस्टेंस के लिए लिखा था ओडोमीटर. कार में बच्चे ऐसा कौन सा डिवाइस होता है? ओके, वेदर ही इज सेइंग स्पीडोमीटर. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, सो speedometer is used to measure speed in a moving vehicle. ऑलराइट, तो स्पीडोमीटर बच्चे वो डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं? मूविंग व्हीकल की स्पीड मेजर करते हैं. अब बच्चे इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत होती है. ओके, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. एब्सोल्युटली राइट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब बच्चे क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बच्चे जब हम स्पीड बताते हैं, ओके, जब हम स्पीड बताते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. बच्चे जब हम स्पीड बताते हैं तो हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती. हम सिंपली बोल सकते हैं टुडे आई हैव ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड. तो उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऑलराइट, ओके. तो बच्चे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. उसके बाद हम स्पीड की जो अलग अलग कैटेगरीज है वो करेंगे. ओके, लेट्स से a train of length 550 meters crosses a bridge of length 1.2 kilometer in 20 seconds. Calculate speed of the train. All right. बच्चे यहां क्वेश्चन में एक ट्रेन है
a train of length 550 meter crosses a bridge of length 1.2 kilometer, okay, in 20 seconds. Calculate speed of the train. All right. तो यहाँ रितंजय ने आंसर निकाल भी दिया. रितंजय is saying it is traveling at speed of 87.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, ऑल राइट. तो बच्चे इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस क्या लेंगे? व्हाट इज द डिस्टेंस दैट वी विल टेक? बच्चे ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ ये टोटल होगा. क्योंकि बच्चे क्या हुआ है, व्हाट इज हैपेंड इज आपकी ट्रेन को पूरा ब्रिज क्रॉस करना है, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ओके, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को ट्रेवल करना होगा, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज. इसको प्लस करना है. सो इट वुड बी 1200 प्लस 550 एंड बच्चे दिस इज इक्वल टू 1750 meters. All right, total distance traveled would be equal to 1200 plus 550, that is equal to 1750 meters. All right, ये total distance है. अब speed का क्या formula है? Speed is equal to distance over time. Speed is equal to distance over time. तो अगर मैं ये बच्चे वैल्यू पुट करूं, that's equal to 1750 and time is 20 seconds. All right, तो बच्चे यहाँ जो वैल्यू आएगी that would be 87.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, बहुत ज्यादा स्पीड आ गई है. इट इज 87.5 मीटर पर सेकेंड, पर ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है. ऑलराइट, so it is 87.5 kilometer per second. This is the speed of the train. Okay, is it clear everybody? कैसे सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? ओके, ऑल राइट. स्टूडेंट, हाँ जी, अभी सुचिता. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मेरा डाउट था कि इससे यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 1200 होना चाहिए ना, यहाँ पे हमने 550 मीटर क्यों प्लस कर दिया? ओके बच्चे, यहाँ बोला हुआ है ट्रेन ऑफ लेंथ 550 मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज. बच्चे ट्रेन को पूरा ब्रिज क्रॉस करना है ना? यस सर. तो अगर ट्रेन को पूरा ब्रिज क्रॉस करना है तो पूरे ट्रेन की लेंथ क्रॉस होगी ना पहले ब्रिज से. जैसे पहले इंजन निकलेगा, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा. जब तक पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम स्पीड कैसे निकाल पाएंगे? यस सर. अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि जो ट्रेन है उसका जो इंजन है, इंजन ब्रिज के एक एंड पे जब एंटर हुआ और जब दूसरे एंड से एग्जिट हुआ उसको इतना टाइम लगा, तो ट्रेन की स्पीड निकालो, तब तो आप बच्चे ब्रिज की लेंथ ले लेते. पर इसमें बोला है कि ट्रेन पूरा जब क्रॉस करेगी तो हमें लेंथ क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करेंगे ना? यस सर. अगर सिर्फ ये बोला होता कि बच्चे इंजन एक एंड से एंटर हुआ और दूसरे एंड पे निकल गया, फिर आप कहते. इज दैट क्लियर? यस सर. थैंक यू सर. ओके बेटा, चलो अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे. आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन. ऑल राइट, a car covers 50 kilometer in, let's say 1.5 hours. Calculate speed of car in kilometer per hour and मीटर पर सेकेंड. बच्चे एक कार है जो 50 किलोमीटर 1.5 आवर्स में कवर करती है. कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. आपको जो स्पीड है बच्चे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में निकालना. ओके, तो डिस्टेंस दिया हुआ है
distance is 50 किलोमीटर। ऑलराइट, टाइम दिया हुआ है आपको 1.5 आवर्स। ओके, उसके बाद है स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड हो जाएगी बच्चे इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हो जाएगी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बच्चे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका पहले किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा आंसर। ओके, तो आप इसकी वैल्यू पुट करिए 50/15, 10 ऊपर ले जाते हैं। ओके, तो बच्चे किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड आएगी? 500/15। तो एकार्थ ने निकाला है 33.33, वैदेही ने भी निकाला है 33.33, अभी सुचिता का भी आंसर आ गया 33.33 किलोमीटर पर आवर। 33.33 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे ये तो किलोमीटर पर आवर में आ गया। अब बच्चे आपको आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में भी। अब बच्चे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, राइट? यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए बच्चे एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट दिस इजिली। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 5/18 से। whenever you have speed in किलोमीटर पर आवर, आप उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करो एंड यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? ओके, कैसे करेंगे? 33.33, ओके, इसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से। ऑलराइट, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप इसे क्या कर सकते हो? किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? यू कैन देन इजिली कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आता है। कैलकुलेट दिस। ओके, तो इसका आंसर है बच्चे 9.25 मीटर पर सेकेंड। एकार्थ और रितंजन ने इसका आंसर निकाला है 9.25 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, so this would be equal to 9.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चे ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और आप उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू? यू कैन इजिली मल्टीप्लाई दिस। आप उसे मल्टीप्लाई करो 5/18 से और किलोमीटर पर आवर की स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चे मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी है और आप उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस? उसको मल्टीप्लाई करो 18/5 से। मल्टीप्लाई दैट बाय 18/5। जस्ट डू द रिवर्स। ठीक है, तो बच्चे ये सिंपल स्पीड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको आ सकते हैं। ओके, अब बच्चे हम नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीड, जब हम टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं तो इसमें जो पहला आएगा दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म स्पीड? जो हमने बच्चे यूनिफॉर्म मोशन लिखा है ना, वो ही एक्चुअली यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स, या आप सिंपली लिख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड
in a straight line. ओके, आप सिंपली लिख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स या व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड, आप उसे क्या कह सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसके बाद आएगा बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब बच्चे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है लगातार चेंज हो रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट is traveling with variable speed, ओके जब ऑब्जेक्ट बचे वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड हम इसमें कैटेगरी लिखेंगे बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, बच्चे जैसे हम कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं या अगर हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो अगर आपको स्पीड देखनी है हम कहां देखते हैं, स्पीडोमीटर पे। तो स्पीडोमीटर हमें बताएगा कि हमारा जो व्हीकल है कितनी स्पीड पे चल रहा है। वो जो स्पीड है बच्चे उस मोमेंट की है, उस टाइम पे, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं बच्चे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट at a particular instant, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बच्चे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम व्हीकल में कैसे देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड, या आप लिख सकते हो इट इज नोटेड विद हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। आपको बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां देखने को मिलेगी, इट इज नोटेड विद हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, ओके। उसके बाद है बच्चे जो स्पीड हम कॉमनली कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। बच्चे बिफोर गिविंग यू कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स से आप एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में ट्रेवल कर रहे हो। लेट्स से वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम बठिंडा टू चंडीगढ़, बठिंडा से चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब बठिंडा से चंडीगढ़ गए, लेट्स से हमें 3 आवर्स लगे, ओके, एंड लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन बठिंडा एंड चंडीगढ़ इज अबाउट 180 किलोमीटर्स। ओके, आप अपनी कार में गए, 180 किलोमीटर्स हमने 3 आवर्स में कवर कर लिए, तो बच्चे आपकी स्पीड कितनी आएगी, यू ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, व्हाट वुड बी आवर स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमारी स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे मुझे एक सोच समझ के बात बताइए, हमने स्पीड तो निकाल ली 60 किलोमीटर पर आवर, पर आप खुद इमेजिन करिए कि आप लगातार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले होंगे। कभी कभी आपने स्पीड बढ़ा भी ली होगी हाईवे पे 100, 120, 130, पर कभी अगर जैसे कोई सिग्नल आ गया तो आपको ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, स्पीड कम हो जाएगी। हो सकता है कहीं रुके भी हो आप बीच में चाय पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो बच्चे स्पीड लगातार 60 किलोमीटर पर आवर तो थी नहीं। तो हमने जो ये स्पीड निकाली है, इट इज टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, कि पूरा जो टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करने में हमें कितना टोटल टाइम लगा है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड
it is speed calculated on the basis of total distance covered per unit टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड. ओके, सो इट इज स्पीड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ओके, पर यूनिट टाइम नहीं लिखते, कवर्ड इन टोटल टाइम, कवर्ड इन टोटल टाइम. ऑलराइट, तो बच्चे इन प्रैक्टिस जो हम एक्चुअली स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, दैट इज एवरेज स्पीड. क्योंकि हम क्या करते हैं, दो सिटीज, दो जगहों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी एवरेज स्पीड. वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, या इसके ऊपर बेस्ड आपको अलग अलग न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. तो हम इसको करेंगे. सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लें. एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम. तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, एवरेज स्पीड. चलो मैं आपको बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन. हाँ जी रितन जी. सर एवरेज स्पीड का सर एक और फॉर्मूला होता है. बताओ. सर a प्लस बी अपॉन ए बी. a प्लस बी ओवर ए बी, ये क्या हुआ, इसमें सर, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर a और b दोनों स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, a और b दोनों स्पीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और सर और आप बच्चे ये फॉर्मूला किस सिचुएशन में यूज करोगे, सर एक डिस्टेंस से ट्रेवल होकर वापस से वहीं पर आने के लिए. दोबारा बोलो एक बार. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट a से b तक जाता है और फिर अगर b से फिर a तक आता है, तो a से Okay. b जाने के लिए a स्पीड और b से a जाने के लिए b स्पीड. ओके, तो उन दोनों का सम अपॉन ए बी. ओके, तो मतलब उसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस सेम है और दोनों अलग अलग स्पीड से आगे पीछे गए हैं. यस सर. इसका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं ट्रेवल करेगा ना. नो सर, इसका दोनों ओके, ओके, तो वो तो हम करके देख सकते हैं बच्चे. वो उन्होंने क्या किया, वो एक सिचुएशन का समराइज फॉर्मूला बना दिया, वो अभी चेक हो जाएगा. लेट्स डू अ क्वेश्चन, लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. ओके, ऑलराइट. अभी सुचिता बोलो बेटा. सर जो आपने एवरेज स्पीड बताया था सर, वो फिर से एक बार सर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके बच्चे, एवरेज स्पीड हम एक्चुअली जो डेली लाइफ में हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसको एवरेज स्पीड ही है. जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह गए सिटी में, और दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है. और बच्चे वो जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेट से आपने 20 मिनट्स में कवर किया, तो आप जो अपनी स्पीड निकालोगे कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. पर बच्चे क्या आप उसी स्पीड पे लगातार चले होगे सिटी में, नो सर. कभी ना कभी तो स्पीड ऊपर नीचे हुई होगी ना. और वो जो स्पीड ऊपर नीचे होती है वो हम कहाँ देखते हैं, स्पीडोमीटर में, कि मेरी कार अभी 35 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 100 पे चल रही है, वो हम स्पीडोमीटर में देखते हैं. और वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. पर जो हम टोटल जर्नी के बाद स्पीड निकालते हैं वो क्या होती है, एवरेज स्पीड. और बच्चे एवरेज स्पीड जो होती है, इट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब तक आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ना चल रहा हो. अगर जैसे क्राउडेड सिटी में जाओगे या कहीं आप मुड़ोगे तो आपकी स्पीड ऊपर नीचे जरूर होगी. तो एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से निकलती है, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब क्लियर है.
सर इसका मतलब सर जो एवरेज स्पीड हो गया सर, जैसे हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं तो उसमें सर हम जितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं उतने टाइम में, तो सर वो उसका एवरेज उसको स्पीड डिवाइड कर होगा। देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उससे। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो यस सर। ऑल राइट। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो रितन जी ने फॉर्मूला बताया, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। ओके, लेट्स से राहुल travels from city A to city B, okay, at speed of 50 kilometer per hour, okay. He then returns from city B to city A at speed of 70 kilometer per hour, okay. Calculate average speed for whole journey, okay. बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राहुल ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. He then returns from city B to city A at speed of 70 किलोमीटर पर आवर. Calculate the average speed for whole journey. अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस है वो नहीं हमें पता, पर हमें एक चीज ये पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है. सिटी ए से सिटी बी, सिटी बी से सिटी ए, सेम रोड पे गया है तो डिस्टेंस सेम है, पर दोनों टाइम में, दोनों केसेस में स्पीड अलग है. एक में स्पीड 50 है, एक में स्पीड 70 है. ऑलराइट, तो लेट्स से बचे डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी. ओके, लेट्स टेक इट एज x किलोमीटर. तो बच्चे उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट वुड बी इक्वल टू 2x किलोमीटर. एक x एक साइड है तो वापस आने के लिए भी उसी डिस्टेंस पे आएगा, तो 2x किलोमीटर. अब बच्चे टाइम भी नहीं हमें पता, टाइम भी अलग अलग आएगा. जब बच्चे वो सिटी ए से सिटी बी किया तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू व्हेन ही रिटर्न्स, क्योंकि जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा. तो बच्चे आई विल कैलकुलेट टाइम वन. टाइम वन किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस है मेरा बच्चे x, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया टाइम वन इज 50 किलोमीटर x बाय 50 आवर्स. टाइम टू इज x, डिस्टेंस इज सेम बट दिस टाइम द स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर, तो 70 आवर्स. टाइम वन आ गया बचे x बाय 50, टाइम टू आ गया x बाय 70 आवर्स. इज दिस क्लियर. टाइम वन टाइम टू हमने कैसे निकाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके, तो टाइम वन इज हो गया x बाय 50 आवर्स, t2 इज x बाय 70. ओके, ऑल राइट. अब बचे मेरा जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. हाँ जी सहजप्रीत बोलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर आप सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं सर, स्कोर सर मेरा थोड़ा रहता है. अब ठीक है. यस सर. ओके, तो बच्चे एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, देखो टाइम वन हमने कैसे निकाला, टाइम का फॉर्मूला हो जाता है बच्चे डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो टाइम वन कैसे निकलेगा, टाइम वन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस तो बचे x ही है दोनों केस में,
क्योंकि डिस्टेंस सेम है पर स्पीड अलग अलग है। तो टाइम 1 हो गया x/50 आवर्स, टाइम 2 इज x/70। तो बच्चे व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बच्चे टोटल डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है, टोटल डिस्टेंस है 2x, टाइम आपको टोटल करना पड़ेगा। ओके तो टाइम हम टोटल करेंगे। इफ आई टोटल दी टाइम, ओके टाइम को अगर मैं टोटल करूं, लेट्स सी, टोटल डिस्टेंस इज 2x, टोटल टाइम विल बी x/50 प्लस x/70। ओके ये मेरा टोटल टाइम बनेगा। अब अच्छा डू वन थिंग, एक चीज करो, इसको एलसीएम भी ले सकते हो आप, लेट्स टेक दी एलसीएम, या आप इसको ये भी कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज, अगर मैं x कॉमन बाहर ले जाऊं, ऑलराइट, तो मेरा x कैंसिल हो जाएगा। चलो वो बाद में करते हैं, ऐसा करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक दी एलसीएम। 70 और 50 का एलसीएम कितना होगा? 350। 70 और 50 का एलसीएम 350 x, ओके 70x प्लस 50x। एक बार चेक करिए, इज इट क्लियर? अब अच्छा इन दोनों का टोटल अगर मैं करूं तो ये 120x बन जाएगा। ओके और x को बाहर ले जाऊंगा, 2x इज इक्वल टू 350 ऊपर चला गया, 350 बचे मैं ऊपर ले आया, और अंदर मेरे पास देखो यहां क्या बचा है, 70x प्लस 50x दैट्स इक्वल टू 120x। ओके बचे x तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके x को कैंसिल करना चाहूं तो x कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 700 ओवर 120। x कैंसिल हो गया बच्चे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप x को कैंसिल कर सकते हो। तो बच्चे व्हाट वुड बी आवर आंसर? एवरेज स्पीड कितनी आएगी? बताइए, एवरेज स्पीड it is 700 by 120. What would be your answer? Okay, Ritanjay is saying 335 by 6. Okay, the 5.83. All right, 5.83 kilometer per hour. तो बच्चे दिस इज आवर स्पीड, ये हमारी स्पीड आई। ओके अब अच्छा रितंजय जो फॉर्मूला बोल रहा था, a प्लस बी, ए बी बाय ए प्लस बी बोल रहे थे रितंजय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बोल रहे थे ए बी बाय ए प्लस बी। हाँ जी रितंजय। सर ए प्लस नहीं, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी ओवर ए प्लस बी। ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, लेट देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं। 50 इंटू 70 ओवर 50 प्लस 70, यही कह रहे हो? यस सर। ओके तो इट इज 350 बाय 120। क्या आंसर आ रहा है सर? गड़बड़ होगी ना? यस सर। ओके तो बच्चे इसका सही फॉर्मूला पता क्या है? क्या? इसका सही फॉर्मूला बनेगा 2ab ओवर a प्लस बी। यस सर, ये बनेगा। ये फॉर्मूला बनेगा यस सर। 2ab by a plus b where a and b are speeds with which object travels। ये देखो ये फॉर्मूला बच्चे हम यहां से भी बना सकते हैं। ऊपर देखो मेरे पास 2x है, 2x which is distance traveled to and fro,
ओके, ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है आगे पीछे। ओके, ऑल राइट। सो इफ आई टेक इट एज 2x ओवर, और बच्चे मान लेते हैं कि ये टाइम मुझे नहीं पता, तो इट वुड बी x स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, तो लेट्स टेक इट एज s1, या इसको ले लेते हैं a, पहली स्पीड को a ले लेते हैं, दूसरी स्पीड को ले लेते हैं b। तो बच्चे इसमें x कॉमन है, x इज कॉमन, सो 2x, x को बाहर ले जाएंगे और ये हो जाएगा 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b। तो x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे बच्चे तो ab ऊपर चला जाएगा, 2ab ओवर a प्लस b, ये फॉर्मूला बनेगा। वो 2 का मैं ध्यान करेक्ट। बस तो बच्चे इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जहां सेम डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड है, सेम डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड है और आपको बोला जा रहा है एवरेज स्पीड निकालो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 2ab बाई a प्लस b। हम ये यूज कर सकते हैं। देखो अभी हमने प्रूव कर दिया ना, तो अगर मैं इसको ये वाला फॉर्मूला भी समराइज्ड वाला यूज करूं तो ये तब भी हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? ओके, देखो बच्चे, ये जो 2ab बाई a प्लस b है ना, हम कहते हैं कि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो, तब आप सीधा इसको यूज कर लो। पर आपके केस में कंफ्यूजन होने के चांस होते हैं, तो कोशिश करो कि टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम वैसे ही करो सॉल्व। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ की गलती नहीं करोगे, तब फिर ये यूज करो। ठीक है, तो 2ab बाई a प्लस b हम तब यूज कर सकते हैं जब सेम डिस्टेंस है और अलग अलग स्पीड है। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर बच्चे हमने डिस्टेंस सेम रखा था, अब टाइम अलग अलग रखेंगे। लेट्स से राज ट्रेवल्स फर्स्ट travels certain distance at speed of 50 kilometer per hour for 20 minutes. Then he travels at speed of 75 kilometer per hour for 10 minutes. Calculate his average speed. ठीक है, अब अच्छा इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं बताया, पर अलग अलग स्पीड है और अलग अलग टाइम है। आपको बोला जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड निकालो पूरी जर्नी के लिए। क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? अलग अलग स्पीड है, अलग अलग टाइम है। सो बच्चे फर्स्ट केस 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स। तो बच्चे डिस्टेंस d1 पहला जो डिस्टेंस है, तो स्पीड ओवर टाइम आएगा बच्चे, दैट्स 50, और बच्चे 20 मिनट्स है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इस मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लो। तो 20 इंटू 60, हमने मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चे टाइम का 20 बाई 60, 60 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चे दिस वुड बी इक्वल टू 23। ओके, 150 किलोमीटर
जस्ट अ मोमेंट, मैंने क्या गलती कर दी, 3 चेक 20/60 63 ओके 150 किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी है, जस्ट वर्ड मैंने डिवाइड कर दिया, मुझे डिवाइड नहीं करना था, मुझे मल्टीप्लाई करना है 20/60। बच्चे डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने डिवाइड कर दिया था, मैंने गलती कर दी थी। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 350/3। तो बच्चे कितना डिस्टेंस आएगा, किलोमीटर में डिस्टेंस निकालो, मैंने पहले गलत कर दिया था, मैंने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड नहीं करना, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिस्टेंस आएगा। बताइए कितना आंसर आएगा, डिवाइड 50/3, बेटा स्पीड नहीं आएगी डिस्टेंस आएगा। डिवाइड 50/3 16.66 किलोमीटर, ऑलराइट इट वुड बी 16.66 किलोमीटर। अब अजय देखते हैं सेकंड केस D2, डिस्टेंस D2 निकालना है, ऑलराइट। अब अजय D2 में हम क्या करेंगे, सेम वही 75 हमारी स्पीड है, टाइम मेरा 10 है, तो 10/60 दैट्स इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 6। और बच्चे जब 75 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड 75/6, दिस इज D1, D2 कितना आएगा, डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर, 75/6 12.5 किलोमीटर, ऑलराइट ये मेरा सेकेंड डिस्टेंस आ गया, ऑलराइट। अब अच्छा निकालिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अब आएगा एवरेज स्पीड, दोनों हमने डिस्टेंस निकाल लिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2। तो बच्चे यहां D1 प्लस D2 करो, 16.66 12.5 6 11 8 ओके 28.16 किलोमीटर। और बच्चे टोटल टाइम है आपका 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 30 इंटू 60। तो बच्चे 28.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इट विल बी 56.32 किलोमीटर पर आवर। ओके मैंने क्या गलत कर दिया, ओके राइट मैंने यहाँ 29 नहीं किया, सॉरी कैरी हो गया ना, 29 6 11 ओके इट वुड बी 29.6, मैंने गलत कर दिया 29.16, तो 29 हो जाएगा बच्चे 58.32। इज इट क्लियर ना, 58.32 किलोमीटर आ गए पर आवर। बचे 29.16 डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 करेंगे, 60 ऊपर आ जाएगा, तो 29.16 मल्टीप्लाई बाय 2 इट वुड बी 58.32। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर, सही है, बताइए। ऑलराइट चलो, सो मेनी ऑफ यू हैव गॉट दी क्वेश्चंस, आपको इसका आंसर आ गया है, ऑलराइट चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे एवरेज स्पीड पे बेस्ड, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ऑलराइट। अ कार covers 50 kilometer in 30 minutes. Calculate the speed in next 60 kilometers if
टोटल, या आप कह सकते हो इफ एवरेज स्पीड फॉर द whole journey, if average speed for the whole journey is okay 50, let's take it as 90 km/h, all right, 150, ओके, पता नहीं मैंने सही क्वेश्चन दिया है कि नहीं, पर देखते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक कार है, ओके, एक कार है जो 50 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट 60 किलोमीटर में उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि जो एवरेज स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आ रहा है। ओके, तो बच्चे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड टोटल टाइम फ्रॉम एवरेज स्पीड। बच्चे टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी के लिए, टोटल टाइम टेकन इट वुड बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। तो बच्चे टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, 50 + 60 110 किलोमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी 90 km/h। ओके, तो यहां जो टोटल टाइम आएगा कितना आएगा बच्चे, 110 को 90 से डिवाइड करिए, 110 को 90 से डिवाइड करिए, आपको एवरेज स्पीड के लिए जो टोटल टाइम है वो पता लग जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 90 दैट्स इक्वल टू 1.22 आवर्स, 1.22 आवर्स इतना, ऑलराइट। अब बच्चे 30 मिनट्स जो है, ओके, तो बच्चे फर्स्ट 50 किलोमीटर में 30 मिनट्स लग गए। अब नेक्स्ट 60 उसको कितने में ट्रेवल करना है, 1.22 आवर्स माइनस 30, तो बच्चे 30 मिनट्स किसके इक्वल है, टाइम लेफ्ट। तो मैं करूंगा बच्चे 1.22 माइनस 0.5, क्योंकि बच्चे 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर्स, तो 1.22 माइनस 0.5 करिए, कितना आता है, हमारे पास कितना समय बच गया 60 किलोमीटर कवर करने के लिए, दैट्स इक्वल टू 0.72 आवर्स। ओके, फर्स्ट 50 किलोमीटर में हम बचे 1.22 का 0.5 आवर यूज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेग के लिए मेरे पास सिर्फ 0.72 आवर्स बचे हैं। ओके, तो बचे उस की स्पीड कितनी होगी, सो स्पीड should be equal to what is the distance 60 kilometer and what is the time left 0.72। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, 60 को 0.72 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब बच्चे जो नेक्स्ट हमारी लेग है उसमें जो स्पीड है वो 83.33 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तब आपकी एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर आएगी। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी। एक कार है जो 30 मिनट्स में 50 किलोमीटर कवर करती है, उसके बाद नेक्स्ट 60 किलोमीटर में उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, अगर आपको टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो बच्चे मैं एवरेज स्पीड से टोटल टाइम निकालूंगा, उस टोटल टाइम में से जो मुझे पहले वाला टाइम पता है उसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास जो टाइम बचेगा फिर वो जो नेक्स्ट डिस्टेंस है उसको मैंने उससे डिवाइड किया और मुझे पता लग गया कि मेरे को कितनी स्पीड पे ट्रेवल करना है। अगर बच्चे आप 83.33 की स्पीड पे नहीं चलोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द एवरेज स्पीड। इज दिस क्लियर? Okay, is this clear everybody?
ऑल राइट। तो बच्चे यहाँ हमारे जो एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिक आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज डन। इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड बच्चे आपसे यही न्यूमेरिकल्स, और थ्योरी में आपसे जो पोर्शन आज हमने किया है वही पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बच्चे आज हम यही रुकेंगे, टुडे वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे वेलोसिटी पिक करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके। हाँ जी बोलो अभी सुचिता। सर वो जो मैथ ऑनलाइन बठिंडा ऐप था सर, जो उसमें साइंस ग्रुप है सर, उसमें सर कैसे ज्वाइन करना सर, समझ नहीं आया। बच्चे आप ना मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, मैं आपको मोबाइल से ऐड कर देता हूँ। आपने उसे डाउनलोड किया हुआ है ऐप को? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे जो अपना नंबर है मेरे, वो अभी जो व्हाट्सएप है उस पर भेज दीजिए, मैं आपको अभी ऐड कर देता हूँ। सर साइंस ग्रुप सर आपके पर्सनल में? हाँ, ये जो बच्चे जहां से मैं आपको नंबर भेजता हूँ ना, Yes, मीटिंग sir. आईडी भेजता हूँ, उसी नंबर पे भेज दो। ओके सर। और हाँ जी सहजप्रीत। सर मुझे सर ये कंफर्म करना है, सर आपका नाम क्या है? बेटा आशीष। ओके सर। सर आप सर आप सर बठिंडे में रहते हो? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ जी, all right, chalo. So I think all your doubts are cleared. बच्चे if anybody of you is not added in the maths online science group, आप अपना नंबर भेज दीजिए, मैं आपको अभी उसमें ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो ओके बच्चे, I'll see you all in the next class.